हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आई एम योर विक्रम सर। थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसमें आज आगे चलते हैं, है ना। तो जोश के साथ में स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ आप सभी। चलिए टॉपिक लगाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स सबसे पहले टॉपिक्स की बात कर लेंगे। आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ thermodynamics. चलिए, तो zeroth law of thermodynamics, basically there are some fundamental laws of thermodynamics. There are some fundamental laws. So there are fundamental laws. Fundamental law of thermodynamics are there, in which first law is basically not the first law. Its name is zeroth law. Its name is zeroth law, है ना। zeroth law of thermodynamics, ZLT. And second one is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, that is FLT. And the third one is the second law of thermodynamics, that is SLT. So these three laws basically we are having as fundamental laws of thermodynamics, in which today we will study the zeroth law and first law, and at last we will discuss the second law basically, है ना। आ जाइए फटाफट। तो basically what is zeroth law of thermodynamics? What is zeroth law of thermodynamics? Basically there is a term which is called thermal equilibrium. इसे सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या होता है। तो बहुत इजी चीज है, फटाफट आप समझेंगे। बेसिकली इफ देयर आर टू बॉडीज, if two bodies are there, suppose the body, if I am taking the two bodies are there, first body is A and the next body is this, next body is B. Suppose there are two bodies and it has the temperature TA, it has the temperature TB. Okay, now if TA will be equal to TB, if the temperature of both the bodies is same, then there will be no flow of heat. Then there will be no flow of heat. We know that heat flow takes place because of the temperature difference. So if the temperature of both the bodies will same, we know that there will be no flow of heat from one body to another body, है ना। नहीं होगा हीट का फ्लो। So इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जब इस तरह की कंडीशन होती है दो बॉडीज में कि जब वहां पर हीट का फ्लो नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है बच्चा? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब फटाफट आते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। चलिए, zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. So basically it says that statement, I'm writing the statement, what is the zeroth law of thermodynamics? It says that when there are two bodies in thermal equilibrium, with the third body then they will be in thermal equilibrium by themselves or by equilibrium with each other. They will be in equilibrium with each other. This word is suitable, with each other. बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, समझदार बात बोली है। क्या बोला है? इजी शब्दों में समझेंगे इस बात को कि बेसिकली when there are two bodies, suppose there are two different bodies and they are both at the different temperatures, है ना। There are two bodies and it may be possible they are in
different temperatures. Okay. Now, if these two bodies are connected with the third body, these two bodies are connected with the third body, so what will happen? It is said that they will be in thermal equilibrium. How it can be possible? Just see. How it can be possible? Just see. So let us draw a diagram. Let us draw a diagram. So this is A, body A. This is body B. And these two bodies are separated by, a wall which is called adiabatic wall or insulated wall. है ना? So we have separated these two walls, these two bodies by this wall. Okay. So this separation is provided between these two bodies by an adiabatic wall. Adiabatic wall basically क्या होता है? Adiabatic wall क्या होता है? Which is insulated या insulating. Basically, heat cannot transfer from one body to another body by this wall. So this wall is called insulating wall. And now these two things are in contact. These two things are in contact with the third body. And this body and this with the third body. So let us, here what I am drawing, the third body like this. So there is a third body called C. So there is a wall in between, and this wall is called conducting wall, a diathermic wall. So there is a diathermic wall or conducting wall and conductive wall. Conducting wall. So basically, what is the meaning of conducting wall? It means that the heat can flow from A to C. Heat can flow from A to C or C to A, and B to C or C to B. The flow of heat can take place between A to C and C to A. So it is said that after some time, that between A and C and B, the thermal equilibrium will take place, है ना? क्योंकि अगर यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल लगी हुई है, डायथर्मिक वॉल लगी, तो ऑब्वियसली ए से हीट सी पर जाएगी, या फिर जो भी इन दोनों में से हाई टेम्परेचर पे होगा, तो हीट का फ्लो इन दोनों सिस्टम के बीच में होगा, दोनों बॉडीज के बीच में होगा, ए से बी और सी से ए, जो भी हो जाएगा. सेम सिमिलर बी से सी और सी से बी की तरफ भी होगा, है ना? और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे और दोनों की मतलब ए और सी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, सी और बी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तो हीट तो ट्रांसफर होगी नहीं. हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दो बॉडीज हैं ए और बी, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दे विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी. इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि देयर आर टू बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द third body. So this is the third body, है ना? First, second, third. So this is the third body. They will be in the thermal. So उसका क्या? है ना? Then they will be in thermal equilibrium with each other. तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में ये होंगे तो क्या होगा? अगर ये दोनों आपस में, अगर ये ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ए और बी ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ऐसा इनका कहना है. और देखें किस तरीके से. माना कि जो टेम्परेचर है ए बॉडी का वो टीए है, ये जो बॉडी है सी, इसका टेम्परेचर मैंने टीसी लिया, ये जो बॉडी है बी, इसका टेम्परेचर आपने टीबी लिया. क्या लिया? टीबी. तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में ए और सी है, अगर ए और सी, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, thermal equilibrium. So we can say that the temperature will be equal of both TA is equal to TC. Similarly, if B and C are in thermal equilibrium, so TB will be equal to TC. है ना? Yes, of course. Let us say this is equation 1, this is equation 2.
Now equating both the equation, what you will get, TA will be equal to TB, है ना? TA will be equal to TB. So from here we can say that yes, definitely these two things will be in thermal equilibrium. ऐसा होगा. और जब यहां से ये डायथर्मिक वॉल को हटा लिया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि हीट का फ्लो ना तो B से A में होता है, ना A से B में होता है, ना A से B में होता है, ना B से A में होता है. तो ये समझा जाता है, डेफिनेटली ये प्रूव हो चुका है थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी कि अगर दो सिस्टम है और दोनों अलग अलग तरह से किसी थर्ड सिस्टम से कनेक्टेड है तो थर्ड सिस्टम के साथ में इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे. दिस इज व्हाट एक्चुअली द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. चलिए, तो आई होप समझ में आया होगा, है ना? अब आगे चलते हैं. ठीक है, अब गैस का वर्क कराते हैं. ओके, आ जाओ. आ जाए आ जाए आ जाए आ जाओ मेरे देश के जवानों. देश को जरूरत है, देश को जरूरत है ना? चलिए, नो जस्ट सी. तो नाउ अब लगाते हैं हम लोग एक और नई हेडिंग, दैट इज व्हाट, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन. बहुत ही प्यारा सर, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया आपने, वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन. तो हम ये चीज पढ़ने वाले हैं कि अगर गैस एक्सपेंड करेगी, और गैस कब एक्सपेंड करेगी, जब उसे एनर्जी मिलेगी. वो एनर्जी हमारे लिए कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है. अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया सर. तो सबसे पहले एक डायग्राम बनेगा. क्या बनेगा? डायग्राम. और डायग्राम हम बनाएंगे किसका? पिस्टन सिलेंडर का. आ जाए, क्या बनेगा? पिस्टन सिलेंडर का डायग्राम. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आया बाबा. आ जाओ. तो पिस्टन सिलेंडर, अरे यार गया. ओके, हमारा मार्कर का ढक्कन बहुत दूर चला गया है. सो देयर इज अ पिस्टन एंड दिस इज व्हाट द सिलेंडर इज. ओके, आ जाए. So let us suppose that there is basically heat. You are giving externally and there are number of gas molecules. Here we are considering gas. What we are considering? Gas. Yes sir. And you are giving heat by some source. है ना? यहां से हम लोग हीट दे रहे हैं सर. बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा. अच्छी बात है. तो इनिशियली ये माना कि जो वॉल्यूम था सिलेंडर का, बेसिकली पिस्टन इनिशियली यहां था, हमने ये सपोज किया. तो ऑब्वियसली बात है, अगर पिस्टन यहां होगा, इस पोजीशन पे होगा, पिस्टन इस पोजीशन पे होगा, तो यहां पे प्रेशर भी कुछ अलग होगा, लेटेस्ट से V1, वॉल्यूम भी क्या होगा? V1 होगा. और जब एक्सपेंड किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लेटेस्ट से ये जो डिस्टेंस है दैट इज dx. इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस पॉइंट पे आकर के जो प्रेशर हुआ वो P2 हुआ और क्या हो गया? वॉल्यूम V2 हो गया. आ जाए भाई, बहुत बढ़िया. तो हमें तो निकालना है वर्क डन. बेसिकली जब वर्क डन होगा, क्या चीज? जब वर्क डन होगा तो क्या गैस जो है एक्सपेंड करेगी. और क्या एक्सपेंड करेगी तो क्या यहां पर फोर्स लगाएगी जिससे प्रेशर क्रिएट होगा? यस सर, है ना? ऊपर की तरफ भाई इसको धक्का मारेगी ना पिस्टन को. जब पिस्टन को धक्का लगेगा, लिफ्ट करा देगा ना. सुना है तुमने? मुझको भी तो लिफ्ट करा देगा, वो चीज चल रही है यहाँ. तो लिफ्ट हो रहा है ना? लिफ्ट हो रहा है भाई साहब. तो वर्क डन तो होगा, डेफिनेटली वर्क डन तो होगा. तो अगर हम वर्क डन की बात करें, किसकी बात करें? वर्क डन की. तो वर्क डन ऑन द बाय द गैस ऑन द पिस्टन, है ना? तो वर्क डन by gas on piston having displacement. कितना डिस्प्लेसमेंट बेटा? having displacement dx. कितना डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी देख रहे हैं?
dx डिस्प्लेसमेंट के, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क dw कितना आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू कितना जाता बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dx. नाउ व्हाट इज फोर्स, force is in terms of pressure. What is the formula of force? Pressure into area, pressure into area. Yes sir. So here we can write that pressure area into dx. We have area into length into breadth into height, length into breadth into height. अगर मैं ये जो दो हैं breadth into height, क्या इनसे भी एरिया लिखा जा सकता है? यस सर, बेसिकली है तो हाइट ही है, तो लेंथ, सारी की सारी लेंथ है, और सबको डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग नाम दे दिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. तो हमको एक कॉमन चीज पता है कि अगर दो साइड से उनका जो प्रोडक्ट होता है उसे भी एरिया लिखा सकता है. लेट इज से दिस इज लेंथ ओवर, तो एरिया इंटू लेंथ, इट विल बिकम वॉल्यूम. सो डेफिनेटली ए इंटू dx इज डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली लेंथ, एरिया इज हियर, सो कैन आई राइट प्रेशर इंटू dv. यस सर, प्रेशर इंटू dv है ना. फॉर दिस आई कैन राइट, यस, इट विल बिकम, फॉर दिस वन ना, इट विल बिकम dv है ना. क्या बन जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम आ जाएगा dv. ओके सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह. सो यहाँ पे हमारे पास में आ गया प्रेशर. क्या आ गया, प्रेशर. अब हमें क्या करना है सर, अब हमें क्या करना, वर्क डन निकालना. तो टोटल वर्क डन, क्या चीज, टोटल वर्क डन फ्रॉम V1 टू V2. वॉल्यूम कहां से कहां तक गया, V1 से V2 तक. बहुत बढ़िया. तो क्या हो जाएगा भाई मेरे पास में, W इज इक्वल टू, इंटीग्रेट जब करोगे तो V1 से V2 इज इक्वल टू PdV. क्या चीज, PdV. क्या यही आएगा हमारे पास में, नेट वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस. ये आपके पास में रहा है ना. सो दिस इज द वर्क डन बेसिकली which actually takes place during expansion of the gas. चलिए, तो ये हमारे पास में डेरिवेशन हो गया. आई होप समझ में आएगा. आगे चलते हैं हम लोग, है ना. दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. किसकी बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. आ जाए फटाफट, चलते हैं. तो हेडिंग लगाते हैं, और हेडिंग हमारी पास में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना. दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इज इट विजिबल ऑन बोर्ड? नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा. फर्स्ट law of thermodynamics. अब दिख रहा होगा, यस. आ जाइए. तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है बेटा, स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट क्या है, इफ द हीट supplied to a system which is capable of doing some work, if the heat is supplying to a system which is capable of doing work, वो सिस्टम जिसे हीट दी जा रही है इज केपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क, वो कुछ काम कर सकता है, तब then the heat supplied will be the sum of work done, will be the sum of work done, that is basically the external work done, the sum of external work done and
change in internal energy. Change in internal energy. Yes, change in internal energy. बहुत ही सुंदर, अति सुंदर स्टेटमेंट क्या है, इसे पढ़ेंगे फिर से समझेंगे। इफ द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, किसी सिस्टम को हीट दी, एक्सटर्नली हीट दी, एनर्जी दी, ऊर्जा दी, देन द हीट सप्लाइड, जो हीट दी, दैट हीट विल बी यूज्ड, दैट विल बी बेसिकली द सम। इसका मतलब, सम का मतलब ये हुआ कि जो हीट दी वो हीट कहां गई, वो हीट कहां गई, इज द सम ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, कोई एक्सटर्नल वर्क डन करने में चली गई, है ना। और दूसरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में चलेगी। मतलब अगर सम कर दिया जाए दोनों चीज का, अगर दोनों चीज का सम कर दिया जाए, मतलब अगर आपने हीट है, सपोज मैं हीट हूं, मैं हीट हूं और मैंने सप्लाई करी अपने आप को, मैंने सप्लाई करा, अपने आप को दिया, हीट हूं, अपने आप को दिया, तो मेरा जो यूज है वो किस किस काम में हो गया, एक्सटर्नल वर्क डन करने में हो गया। दूसरा मेरा काम किस में हो गया भाई, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में हो गया। तो दोनों जगह हो गया। तो मैं किसका सम हूं बेसिकली, अगर दोनों चीज को सम कर दिया जाए, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का, तो हीट मिल जाएगी वापिस। आई विल कम अगेन आया, चलिए। तो वी कैन से व्हाट वी कैन से, दैट द एनर्जी यू आर गिविंग, द हीट यू आर गिविंग, दैट इज डेल क्यू हियर, है ना। इट विल बी द सम ऑफ change in internal energy and work done yes definitely sir, ये इसका मतलब है। internal energy represented by U not by W, है ना। and internal energy, when we are talking about the internal energy here in this case which we are talking about, the internal energy is of gas, internal energy, है ना, internal energy of gas। and while talking about the internal energy, we are considering the internal energy, we are talking about internal energy, it means we are considering both the kinetic energy plus potential energy of gas, है ना। in this case we are considering both kinetic energy and potential energy, है ना। but basically if this is an ideal gas, no, just see, for ideal gas, if we are talking about ideal gas, then in ideal case the assumption is that there is no interacting force, there is no force in between the molecules, either repulsive force, either attracting force. There is no such force is there, because it is assumed that they are very far from each other and their force of attraction or repulsion is negligible. So obviously they will don't have any internal force, intermolecular force of attraction or repulsion between them. There will be no potential energy. Yes, it is, there is no potential energy. So in case of ideal gas, if we are talking about, then kinetic energy is the total energy. And molecules, lots of energies are there. We will discuss in the kinetic energy theory of gases, KTG. We'll talk about the rotational energy, we'll talk about vibrational energy, we'll talk about kinetic energy, that is the translation energy. So at molecular level there is a different, lots of energies are there, है ना। So internal energy is the sum of all these energies basically. Okay, बहुत ज्यादा अंदर की बात बता दी सर आपने, आ जाइए फटाफट, चलिए जितनी जरूरत है उतना यहाँ पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को वहीं पे निपटेंगे उसी के साथ। आओ, तो यहां पर भाई साहब ये सबसे सुंदर, अति सुंदर है ना। अब आते हैं, तो ये ही है इसका सार, समरी ऑफ दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस दैट्स इट ओनली। इसे थोड़ा और अच्छे से अगर डायग्राम के थ्रू समझाया जाए तो कुछ इस तरीके से समझाया जा सकता है। आ जाइए, एक डायग्राम है छोटा सा, उसके थ्रू समझते हैं। चलिए, तो समझने के लिए हम क्या लेते हैं, हमारे पास में एक इस तरीके से पिस्टन ले लेते हैं, है ना। ब्लॉक सिलेंडर लिया है और एक पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन, है ना, दिस इज द पिस्टन ओवर हियर। एंड नाउ दिस पिस्टन is connected by a pulley to a weight. So there is a weight, है ना, and that weight is basically
there is a weight something like this. No, weight is here and this is a piston over here. Piston है बच्चा, क्या है? Piston है. ओके सर, पिस्टन है मान लिया हमने. और यहां पर हमारे पास में है गैस. क्या है? गैस है बच्चा. क्या है? गैस है. ओके. और यहां से आपने क्या दे दिया इसे? यहां से आपने दे दी है आग, रामू की आग. क्या दे दिया आपने? रामू की आग. दैट इज डेल क्यू. सो यू आर गिविंग heat, and what will happen when you supply heat? What will happen? The change in the internal energy will take place. Obviously the change in internal energy will take place, है ना? obvious सी बात है, जब हीट सप्लाई होगी तो एक्सपेंड हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, उनमें एनर्जी आएगी भाई, मोटिवेशनल इमोशनल एनर्जी आएगी, है ना? मोटिवेशनल एनर्जी. ओके, सो व्हाट विल हैपन ना, देयर विल बी अ वर्क डन विल टेक प्लेस. जब ये एक्सपेंड करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा. तो भाई साहब वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. तो बेसिकली आपकी नहीं सिस्टम की तो जो वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है? वर्क डन. अरे ऐसा नहीं, जो हीट आपने दी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में और वर्क डन में. यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. दैट्स इट. इससे ज्यादा इसकी कहानी नहीं है. आइए आगे चलते हैं, इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, है ना? ऑन डिफरेंट प्रोसेस. आ जाएंगे जल्दी. तो एप्लीकेशन हेडिंग लगाएंगे. एप्लीकेशन ऑफ FLT on thermodynamics process. Yes, on thermodynamics process. So application of this आ जाए. तो फर्स्ट जो हमारे पास में एप्लीकेशन, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, उसका जो पहला असर है, एप्लीकेशन है, वो हम किस पे देखेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस पे. किस पे बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस. तो बेसिकली अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया? आइसोथर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. सिर्फ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है सिस्टम का, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया भाई? अगर आपने टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी, यस सर, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूल्स उसी लेवल पे वाइब्रेट करेंगे, उसी लेवल पे मोशन करेंगे जिस पर वो कर रहे थे किसी टेम्परेचर पर. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो सेम रहेगा, है ना? मोशन वो सेम करेंगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी. तो हम बोलेंगे अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू FLT डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू. अगर हमारा डेल यू 0 है तो डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू. और इसका मतलब ये हुआ कि मार्कर के अंदर इंक खत्म हो गई है. थोड़ी देर वेट करें. यस, मार्कर के अंदर इंक खत्म हो गई बच्चा. कृपया कर 2 मिनट रुकें. और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बुरा नहीं मानोगे. आ जाए बच्चा फटाफट. तो हमने क्या सीखा? हमने देखा कि भाई अगर इफ देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, है ना? सो हमारे पास में जो ये डेल क्यू था, वो किसके बराबर था? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू FLT. बहुत बढ़िया. अगर ये डेल 0 हो गया, डेल यू 0 हो गया, तो क्या हमारे पास में जो डेल क्यू है, दैट विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू, दैट विल बिकम इक्वल टू डेल डब्ल्यू. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस थिंग? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट दे दी सिस्टम को, वो पूरी की पूरी हीट वर्क डन करने में यूज हो गई. The heat which is given to the system is completely used in doing work.
काम करने में ही यूज हो गई, इंटरनल एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, या इंटरनल एनर्जी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर ऐसा होता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल भाई। अंटिल अनलेस यू विल इंक्रीज और चेंज द इंटरनल एनर्जी, वर्क डन इज नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द आइडियल थिंग्स, है ना। ये जो चीजें बनाई है ये आइडियल है। क्या है? आइडियल, है ना। सो अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस इट मस्ट बी लाइक दिस वन, है ना। आ जाइए, बाकी रियल सिचुएशंस में इट इज नॉट पॉसिबल, अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस इट इज पॉसिबल, है ना, बट इन रियल लाइफ दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये हमारा हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। एंड व्हाट इज आइसोबेरिक प्रोसेस? आइसोबेरिक का मतलब क्या हुआ, इसे समझे। आइसोबेरिक का मतलब जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है। क्या है हमारे पास में बेटा? प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, प्रेशर कांस्टेंट है ना, अच्छी बात है। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो क्या वॉल्यूम चेंज हो सकता है? यस सर, वॉल्यूम कैन चेंज इफ द वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2। वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V1 टू V2। हमारे पास में जो FLT है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या कहता है? डेल Q विल बी इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। अच्छी बात है सर। तो हमें क्या वर्क डन पता था? हमें क्या वर्क डन पता है? यस सर, डेल W इज इक्वल टू वॉट बेटा? P डेल V, यही तो निकाला था अभी हमने, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस। क्या यही निकाला था? यस सर। डेल V को क्या लिख सकते हैं? डेल V को लिख सकते हैं V1 से V2। तो क्या मैं लिख सकता हूं V1 माइनस V2, चेंज इन टेम्परेचर। यस, चेंज इन टेम्परेचर। अरे हाँ, बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल, तो V2 माइनस V1 होना चाहिए, है ना। ये हमारे पास में। सो दिस इज बेसिकली द वर्क डन। आई विल रिप्लेस दिस dW बाय दिस dW। व्हाट डेल W, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट डेल Q विल बी इक्वल टू डेल U प्लस P V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। सो दिस इज व्हाट द केस इन, this is what the equation which will take place in isobaric process, है ना। yes sir, so this is the equation. This equation we will use in numericals also. When we will do numerical we will use this particular equation, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप समझ में आया होगा, है ना। आ जाइए, फटाफट आगे चलते हैं। और next is isochoric process. Third one is isochoric process. Isochoric process और isochoric process क्या होती है? चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो, है ना। चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमें पता है वर्क डन। बेसिकली हमारे पास में जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या है? फटाफट आएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। ओके, तो अगर वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो मेरे पास में क्या है? डेल W इज इक्वल टू P डेल V। सो डेल V इज जीरो, पुट डेल V जीरो हियर, यू विल गेट बिग जीरो, you will get dW is equal to 0. Work done zero. No change in volume. If there will no change in volume, suppose piston block system, once again gas is here inside this. Yes sir, you are giving heat sir. Yes sir. And if you are giving heat, what will happen? The change in internal energy will take place. The internal energy will change. And also, if the internal energy will change, gas will expand, so there must be the change in volume. Obviously, if you will see, the change must be there. Volume must change. होगा, पर अगर यहाँ पे अगर चेंज नहीं हो रहा है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, अगर हमारा डेल V जीरो है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या पिस्टन मूव कर रहा है? पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन जीरो हो गया। ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे क्या है? आया भी वर्क डन जीरो। तो बेसिकली
अगर इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन में से पुट करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस, ये तो जीरो हो गया, तो डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी दी, जो एनर्जी दी वो टोटल किसमें यूज हो गई, वो किसमें यूज हो गई, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या टोटल इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में ही यूज हो गई। वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ भाई साहब, तो फिर क्यों दी इंटरनल एनर्जी, मतलब व्हाट विल बी द यूज ऑफ इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नथिंग, है ना भाई, फिर क्यों दिया, खाया पिया कुछ भी नहीं और ग्लास भी तोड़ दिया, वही ना डायलॉग है ना, समथिंग लाइक दिस इज देयर, खाया पिया कुछ नहीं ग्लास भी तोड़ दिया, यस समथिंग लाइक दिस। इंटरनल एनर्जी विल चेंज ओनली इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने आइसोबैरिक देख लिया, आइसोकोरिक देख लिया, आइसोथर्मिक देख लिया। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या है, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मिक हो गया, आइसोबैरिक हो गया, और एक और प्रोसेस थी, एक और प्रोसेस थी, एक और प्रोसेस थी क्या, नहीं थी, यस सर। सो दिस इज व्हाट बेसिकली इट इज। चलिए, तो आई होप जो क्लास में आज पढ़ाया वो आपकी समझ में आया, है ना। अब आपकी ड्यूटी बनती है आप पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, दैट्स इट। ओके बच्चा, गुड बाय एवरीवन, सी यू।